Good morning students, welcome to the class. In worksheet number 26, we'll learn prime factorization of a cube. It is very important topic and very interesting too. Prime factorization is a number which means all the factors of the numbers are prime factors. For example, 500 can be written as 2 into 2 into 5 into 5 into 5. So how we find this number? We divide it by 2 because 2 is a prime number. Let us first discuss what are prime numbers. 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number, 7 is a prime number. All these numbers have only two factors. 1 has two factors, 1 and 2. 3 has two factors, 1 and 3. 5 has two factors, 1 and 3, 1 and 5. And 7 has two factors, 1 and 7. If we take 4, 4 has three factors, 1 factor, 2 factor and 4. What do you mean by factor? It means they come in the table of 1, 2 and 4. 2 comes in the table of 1 and 2 only. 3 comes in the table of 1 and 3 only. 5 comes in the table of 1 and 5 only. And 7 comes in the table of 1 and 7 only. So those numbers which have only two factors. First is the number itself, like here 2, number itself, and other is 1. Then it is called a prime number. 4 is not a prime number because it has three factors. The number itself 4, 1, and other than these two, it has 2 also as a factor. सो दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो 500 को हमने 2 से डिवाइड किया. आपको ये डिवाइड करना आना चाहिए. अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे डिवाइड करोगे एंड बाय प्रैक्टिस धीरे धीरे फिर ये आपको आ जाएगा. तो आपको ये मेंटली करना आना चाहिए. तो 250 आया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिर 250 को 2 से डिवाइड करते हैं. 2 1 ज़ा 2, 5 आया, 2 2 ज़ा 4, 10 आया, 2 5 ज़ा 10, 125. फिर आप इसको 5 से डिवाइड करते हैं. नॉर्मल डिवीजन जैसे होते हैं, जो आंसर्स आते हैं हम उसको लिखते चले जाते हैं. ठीक है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं. ठीक है, ये आपको करना आना चाहिए. सारे नंबर्स या प्राइम नंबर्स हैं. अगर हम 500 को ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 100 तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है. इसमें ये तो प्राइम नंबर हुआ पर 100 प्राइम नंबर नहीं है. तो इस तरह से स्प्लिट करना जहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स हो, तब हम कहते हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है. ओके, now let's see what these two children are talking. Chintu and Pintu are good friends. They are studying in class 8. They are the members of mathematics club. They are participating in the club activity on Saturday. The theme of maths club activity is playing with numbers. Chintu and Pintu are discussing on it. Chintu said, "Do you know one thing?" Pintu said, "What?" Chintu said, "There are many numbers which have exactly 3 same prime numbers after prime factorization. For example, prime factorization of 8 is 2 into 2 into 2. Here 8 has 3 same prime numbers, 2 as factor. So 8 के जब हम factors लिखते हैं तो तीनों same numbers हैं. In occurring in triplets, same numbers as prime factors. In 3, it had 3 same prime numbers. Pintu said these numbers are called cube numbers. Chintu, is it necessary that numbers having same kind of prime numbers after prime factorization of a number? No. After prime factorization of a number, all prime numbers should comprise a group of 3. For example, prime factorization of 216 is 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3. तो यहाँ पे दो तरह के numbers हैं. 2 के भी factors है 3 और 3 के भी 3 factors है. Here 2 and 3 are prime numbers and these numbers occur thrice in a group. Hence this number is a perfect cube or perfect cube number. ओके, सो यहाँ पर दोनों को डाउट था कि क्या एक ही तरह के फैक्टर्स चलते हैं. नहीं, 2-3 तरह के हो सकते हैं, लेकिन वो थ्राइस में आएंगे तब वो परफेक्ट क्यूब होगा. इफ़ इट अकर्स इन थ्राइस, तो ये इंपॉर्टेंट है कि थ्राइस होना चाहिए इन क्यूब्स. ओके, सो देयर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू before doing this thing. A number in which each prime factor appears 3 times after prime factorization is called the cube number or perfect cube number. तो जो जहाँ 3 बार आ जाएंगे उसको हम बोलेंगे 3 बार फैक्टर्स आएंगे सेम नंबर, तो हम बोलेंगे परफेक्ट क्यूब है. नहीं तो वो नहीं होगा परफेक्ट क्यूब. सो हियर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू. लेट अस ट्राई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर्स 3 3 2 5. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. फिर 1728, फिर 27 और 1000 का करना है. तो स्मॉलेस्ट नंबर का मैं सबसे पहले छोटे का 27 का आपको करके दिखाती हूँ. 27 हम जब करते हैं तो 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 ऐसे लिखते हैं हम. 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 9 और 9 को फिर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3. तो 27 के फैक्टर्स क्या हो गए?
3 × 3 × 3, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, इसको हम एलसीएम मेथड बोलते हैं, या आप ऐसे फैक्टर ट्री बना के कर लीजिए। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 जो है 3 बार आ रहा है, तो ये एक परफेक्ट क्यूब है 27, ठीक है। ये 3 के 3 बार फैक्टर्स आ रहे हैं इसके अंदर। ओके, अब एक और नंबर लेते हैं हम लोग। 1728 आपको याद है पिछली वर्कशीट्स में हमने करा था किसका फैक्टर होता है, 12 का होता है, 12 का क्यूब होता है ये। चलो उसको 1000 को करते हैं। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, फिर 10 को लिख दीजिए 2 × 5, इस 10 को भी लिख दीजिए 2 × 5, बीच में मल्टीप्लाई का निशान रहेगा बिकॉज ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो अब आप देख रहे हो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो ये भी परफेक्ट क्यूब रहेगा, ठीक है। सो 1000 के प्राइम फैक्टर्स क्या बने, 2 × 5, 2 × 5, 2 × 5। ओके, दिस इज ऑल्सो परफेक्ट क्यूब नंबर, ये हमने देखा। ओके, अब हम करते हैं 1728। 1728 हमें याद है कि 12 होता है, 3325 करते हैं। 3325 को आप 5 से कीजिए बिकॉज ये एंड कर रहा है 5 से। सो 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25। जिन बच्चों को ऐसे डिवाइड नहीं होता, आप इस तरीके से इसको डिवाइड करके देखिए, धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस आपको ये फास्ट करना आ जाएगा जैसे हम लोग कर रहे हैं, है ना। ऐसे 30, फिर 25, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। ये आपने देखा 665, फिर आप इसको 5 से करोगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, फिर आप देखते हो 133 ऐसा नंबर आया है जो आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज द नंबर लास्ट डिजिट अगर 3 होती है, ऑड नंबर होता है, तो वो 2 से नहीं होता। ये 5 से भी नहीं हो सकता है, ये 3 से भी नहीं होगा बिकॉज सम ऑफ द डिजिट्स 3 + 3, 4 + 1 5। अगर सम ऑफ द डिजिट्स आपके 3 से डिवाइड होते हैं तो फुल नंबर 3 से डिवाइड होता है। हमने इसको क्लास 6 में पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल्स में। ओके, सो अब हम इसको 7 से ट्राई करते हैं, तो हम देखते हैं 7 से डिवाइड हो जाता है। 7 1 ज़ा 7, फिर 63 आता है, और 7 9 ज़ा 63। अब 19 आपको पता है एक प्राइम नंबर है, ये और फर्दर डिवीजन नहीं होगा। तो 3325 के फैक्टर्स इस तरह से बने। अब यहाँ पे कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, उसके बाद हमें करना है 1728 को। इस नंबर को हम यही कर लेते हैं, 2 से 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से करो, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 2। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 216 तो आपको पता ही है 6 का क्यूब होता है ना। 6 × 6 × 6 अभी हमने देखा था, यानी कि 2 × 3 हम उसको लिख सकते हैं, 2 × 3, 2 × 3। फिर भी चलो इसको आगे कंप्लीट कर लेते हैं हम। ये करेंगे 2 2 1 ज़ा 2। अब ये 16 देखो, ये डिवीजन मैं आपको करके दिखाती हूँ। 2 1 ज़ा 2 करो, अब ये 1 आया, 1 नहीं डिवाइड होता, तो अब आपको 6 भी उतारना पड़ रहा है। इसकी 2 डिजिट्स उतारी, इसके लिए यहाँ 0, ठीक है, ये ध्यान रखना है, कुछ बच्चे ये गलती कर जाते हैं। फिर 2 5 4, 2 2 2 ज़ा 4, 27। फिर अब ये 27 होने के बाद अब ये 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा, 3 9 ज़ा, और फिर 3 3 ज़ा। तो हम देख रहे हैं इसके 2 के कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3। तो अब हम देख रहे हैं कि अब हम इसके 3 3 में फैक्टर्स देखेंगे, तो ये ऐसे 2 हुआ, और ये 2 हुआ, और 3 का 3, तो 2 × 2 × 3, ये क्या आया, 12। हम बोल रहे थे ना 1728 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 12, क्योंकि यहाँ पे थ्राइस की ट्रिपलेट की पेयरिंग होती है। इससे एक 2 आ गया, इससे एक 2 आ गया, इससे एक 2 आ गया, और इनसे एक 3 आ गया। ओके, इस तरह से हम क्यूब रूट निकालते भी हैं। Ram has a shoe box which has dimensions of 15 by 30 by 15, and he wants to make a cube using these type of boxes. How many minimum number of such boxes are required to make a cube? Now volume of this cuboid, ये जो box है ये cuboid है, length breadth height है, इसका volume हम length into breadth into height करते हैं। तो 15 के फैक्टर्स आपके रहेंगे 3 × 5, 15 को आप लिख सकते हो 3 × 5, और 30 को आप लिख सकते हो 5 × 6, यानी कि 5 × 2 × 3, ठीक है। तो ये तुम्हारा 5 × 2 × 3 ये आ गया। ओके, और ये 15 को हम लिखेंगे 3 × 5। इस तरीके से बन गए सारे फैक्टर्स। सो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 के 3 फैक्टर्स हैं, 5 के 3 फैक्टर्स है, ये 2 जो है ये अकेला है।
तो हमें ऐसे कितने बॉक्स चाहिए, 2x2 चाहिए परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। 2 के 2 और चाहिए ना, 2x2 चाहिए। सो वी नीड 4 सच बॉक्सेस टू मेक इट अ क्यूबॉइड। ही नीड्स दिस मच ऑफ बॉक्स टू मेक इट अ क्यूब आउट ऑफ दिस क्यूबॉइड। ओके, सो आर एक्सरसाइज बिगेन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। ये सारे नंबर्स कौन से हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं हैं। अभी हमने देखा ये 6 का क्यूब है, इसको अभी हमने देखा ये क्यूब नहीं होगा क्योंकि ये 1000 से एक डिजिट ज़्यादा है। ये हमने देखा 9 का क्यूब है, इसको हम देखते चेक करते किसी का क्यूब आता है कि नहीं, और इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन रहेगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड सो दैट नंबर्स बिकम अ परफेक्ट क्यूब। सो ये सारे नंबर्स आपके परफेक्ट क्यूब नहीं हैं, इसको हमें किसी स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। सो ये क्वेश्चन हम कॉन्टिन्यूटी में करेंगे बच्चों। आपके लिए कोविड मैसेज है कि टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 प्लीज़ वियर अ मास्क वेन एवर यू गो आउटसाइड, वियर अ मास्क। ओके, लेट अस टेक फर्स्ट क्वेश्चन 216। 2 के फैक्टर्स बनाओगे, 2 1 ज़ा 2, 0 8, ये मैंने अभी करके दिखाया था 216 को। सो ये 6 आ जाता है इसका फैक्टर्स करके, 3 से एक पेयरिंग आ गई, 3 से एक पेयरिंग आ गई। ठीक है, ये आप डिवाइड करना बहुत ईजी है, इट्स वेरी ईजी। सो 216 इज़ अ परफेक्ट क्यूब बिकॉज थ्राइस यहाँ पे ट्रिपलेट ट्रिपलेट पेयरिंग बन गई है। ठीक है, और बच्चों ये जो मैंने निशान बनाया है ये आप देखो, ये आपका स्क्वायर रूट का निशान होता है, और जब आप इसके अंदर ऐसे 3 लगा देते हो तो ये क्यूब रूट का निशान होता है। ठीक है, हम 216 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं और सॉल्व करके 6 आ गया। सो हमने लिखा है क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। इसको ऐसे रीड करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6 एंड इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट नंबर लो, ये नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10,000 है। 10 से फिर 2 इंटू 5 आ जाएगा, इस 10 से 2 इंटू 5 आ जाएगा, इस 10 से 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। तो आप देख रहे हो 2 के 1 2 3 4 नंबर्स हैं और 5 के 1 2 3 4 नंबर है। ये 3 की तो पेयरिंग होके पेयरिंग बोल रही हूँ, ट्रिपलेट हो गया, थ्राइस हो गया, तो एक आ जाएगा ट्रिपलेट से, और 5 का एक ट्रिपलेट से आ जाएगा। ये 2 एक और ये 5 ये अंदर ही रह जाएगा, क्यूब रूट के अंदर ही, ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये आपका 10 क्यूब रूट ऑफ 10 आंसर आएगा। सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब बिकॉज ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए 729, हमको पता है 9 का क्यूब होता है, इसके फैक्टर्स बनाओगे, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 27। इसके बाद आप कर ही लेते हो, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो ट्रिपलेट ट्रिपलेट बन गया। तो एक ट्रिपलेट से एक 3 आ गया, एक से एक 3 आ गया, 3 इंटू 3 इज़ 9। सो इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। 2025 में इसको 5 से करेंगे बिकॉज दिस नंबर इज एंडिंग विद 5। 5 4 ज़ा 20, अभी दोनों 25 इकट्ठे उतारे इसलिए 0 आया, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, फिर ये नंबर्स हो गए। तो 5 के 2 फैक्टर्स है, 1 2 3 4, 3 के 4 हो गए। तो ये नंबर हम देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर एक ट्रिपलेट हुआ, एक 3 रह गया आपके पास फालतू, ये देख रहे हो ये रह गया है, और यहाँ पर ये रह गया है ना, इनके ट्रिपलेट नहीं बन पा रही है। तो 2 5 और एक 3 अंदर ही रह जाते, सॉल्व नहीं हो पाते, क्यूब रूट नहीं बनता, इससे एक 3 बाहर आ जाते, इतना ही सॉल्व हो पाता है, उससे ज़्यादा नहीं। सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे 15625 जो है ये नंबर हमें लग रहा है कि हमने देखा था हमारी वर्कशीट में कि किसी चीज़ का परफेक्ट क्यूब है। लेट अस सॉल्व इट। पीछे 5 है, 5 से करोगे, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, फिर 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 15, फिर 5 6 ज़ा 30 रहेगा, ये 1 नीचे उतर जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। उसके बाद रिपीट इसको करते चलो 5 से। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो ये ट्रिपलेट से एक 5 आ गया, इससे एक 5 आ गया, 5 इंटू 5 इज़ 25। तो कंप्लीट सॉल्व हो गया, इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है हमें। यहाँ पर हम इसके फैक्टर बना रहे हैं, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, ये आप कई बार करा है आपने, 81 के बाद 27 9 3। सो हम देख रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इतने नंबर हमारे पास आए। तो हम देख रहे हैं कि इसकी हो गई पेयरिंग, यहाँ पर एक नंबर रह गया अकेला। सो ये तीनों नंबर्स तो आपके इकट्ठे चले गए, और यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा 3 दिया, तब ये हुआ है। तो यहाँ पे किस नंबर की हमें ज़रूरत पड़ी, स्मॉलेस्ट नंबर 3 की ज़रूरत पड़ी इसको परफेक्ट क्यूब बनाने की। सो हमारा आंसर रहेगा स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 3 विच व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 243 मेक इट्स अ परफेक्ट क्यूब। तो जब हम इसको 3 दे देते हैं तो अब ये इस तरीके से सॉल्व होगी। इसका आंसर जो नेक्स्ट नया नंबर बनेगा
243 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और उसका क्यूब रूट सॉल्व करके 9 आंसर आएगा। बट हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे सिर्फ पूछा गया स्मॉलेस्ट नंबर। अगर वो बोलता है उसका परफेक्ट क्यूब भी निकालो तो इसी तरीके से सॉल्व होके आगे 9 आंसर आएगा। ओनली 2 सिंगल स्टेप्स मोर नीडेड। इसी तरह 72, 8 9 72, 8 आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, 9 आपका 3 इंटू 3 होता है। तो यहाँ तो आपका बन गया ट्रिपलेट, यहाँ पे एक की कमी है। सो आप नंबर्स को नोट कर लेंगे। तो एक 3 की कमी है, तो दैट्स दिस स्मॉल 3, दिस स्मॉलेस्ट नंबर इज नीडेड 3 विच वन मल्टीप्लाइड बाई 72 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 3 को, इट विल मेक ए परफेक्ट क्यूब। और फिर तब आपका आंसर यहाँ पर आएगा 2 इंटू 3 करके परफेक्ट क्यूब का आंसर 6 आएगा। ओके फिर ये आपका जो नंबर है 216 बन जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होके। ओके जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाएंगे 3 2 6, 3 7 21। ओके 1188 है, इसको करते हो तो 2 5 फिर 2 9 18, 2 4 इस तरीके से कंप्लीट आपके डिवाइड हो जाते हैं। लास्ट में 11 आता है। तो हम देख रहे हैं कि 2 के 2 फैक्टर्स हैं, 3 के 1 2 3 फैक्टर्स हैं और 11 का 1 फैक्टर है। तो यहाँ पर एक 2 में एक 2 की ज़रूरत है इसका ट्रिपलेट बनाने के लिए। 11 को भी 2 11 चाहिए तब ये कंप्लीट होगा। तो अब स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या हुआ 11 इंटू 11 इंटू 2। तो 11 इंटू 11 इंटू 2 को जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये 121 इंटू 2 होके आपका आ जाता है 2 1 2, 2 2 4, 242। So smallest number is 242 which when multiplied to which when multiplied this number 242 से मल्टीप्लाई करते which makes it a perfect cube। और अगर इसका परफेक्ट क्यूब बन जाता है और उसका आंसर अगर हमें निकालना हो तो उसका आंसर हमारा 2 इंटू 3 इंटू 11 करके 66 आंसर आएगा। विच इज़ नॉट आस्क्ड, मैं अपनी तरफ से आपको करा रही हूँ कि हमारी एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन है। एक चीज़ और पूछ ली जाए तो इतना ही एक्स्ट्रा जाता है बस इसी सेम क्वेश्चन में। ठीक है आगे इसका डी पार्ट देखते हैं। 392 के फैक्टर्स बना लो 2 से, इस तरह से बन जाएंगे। तो 2 के 3 हो गए और 7 यहाँ पे 1 चाहिए। तो बहुत इजी लग रहा है ये क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट नंबर आपका 7 होगा बिकॉज ये 2 रह गए, इसको एक 7 और चाहिए। ठीक है सो अब इसका जब हम क्यूब निकालेंगे तो 2 इंटू 7 करके 14 आंसर आ जाएगा। ओके बट अकॉर्डिंग टू वर्कशीट आवर आंसर इज स्मॉलेस्ट नंबर इज 7। नेक्स्ट देखिए 128 है, इसके फैक्टर्स बनाओ। तो बहुत ही इजी है ये नंबर आपका। आप देख रहे हो 2 के 1 2 3 4 5 6 7 बने। तो 7 बनने का मतलब है 3 और 3 6 की तो हो जाएगी और ये इस 2 को 2 और चाहिए 2, तो वो हमने ब्लैक कलर से दिखाए। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ 4, 2 इंटू 2। स्मॉलेस्ट नंबर इज 4 विच वन मल्टीप्लाइड मेक्स इट अ परफेक्ट क्यूब। सो दिस इज योर आंसर, 4 इज योर आंसर। और जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, 512, 8 का क्यूब। ठीक है इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। सो जो परफेक्ट क्यूब के क्वेश्चंस थे वैसे ही आपके स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस होते हैं। उसके अंदर तुम क्या करते हो बस वहाँ पे डबल डबल पेयरिंग करते हो। क्यूब रूट में परफेक्ट क्यूब में इसमें यही फ़र्क है कि यहाँ पे डबल डबल आपकी वो चलती है ना। ये सारा क्वेश्चंस जो थे वो हमारे परफेक्ट क्यूब के क्वेश्चंस थे। ओके है ना। इसी में जब हम डबल डबल कर ले ना 2 से तो ये तुम देखोगे ये आपका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। वहाँ पे 2 नंबर चलते हैं 2 इंटू 2। जैसे इन 2 की पेयरिंग हो जाएगी, इन 2 की हो जाएगी, इन 2 की, तो ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे परफेक्ट क्यूब के। क्यूब में 3 नंबर चलते हैं और स्क्वायर के अंदर हमारे 2 नंबर्स की पेयरिंग होती है। ओके विद दिस वी फिनिश दिस वर्कशीट। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक इट एंड राइट कमेंट्स ऑल्सो। और आने वाले त्यौहार की आपको शुभकामनाएं, क्रिसमस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आप सभी अपना ध्यान रखिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन बाय बाय, नमस्कार।